Morning students, today we are going to discuss chapter US Hegemony in World Politics, class plus 2 arts, subject pol science. So first of all, we will discuss WTC attack 9/11 we can say. In previous chapter, we discussed about American dominance, America's attack and Clinton era. Today we are going to discuss Operation Enduring Freedom. 11 September 2001 was the darkest day in the US history. On this day in 19, Arabian hijacker hijacked 4 commercial planes and dashed on some important US buildings. 2 aircrafts dashed into the twin north and south towers of World Trade Center in New York. Third plane crashed with Pentagon building in Arlington near Virginia, which is headquarters of US Defense Department. The fourth plane, bound for the US Congress building, came down in Pennsylvania. Americans call it 9/11. The attack killed 3,000 people. These attacks were similar in shock to British burning of Washington D.C. in 1814 and sudden Japanese attack on Pearl Harbor in 1941. 9/11 was more brutal attack as comparative to अमेरिका के इस हमले की तुलना ब्रिटिश पे हुए हमला जो वाशिंगटन डीसी 1814 में हुआ था और पर्ल हार्बर पे 1941 में जापानीज फोर्सेस के द्वारा किया गया था, उससे तुलना की गई। किंतु 9/11 जो था वो ज़्यादा ब्रूटल था, इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था, ज़्यादा लोग मारे गए थे। Clinton had retired. After that, George W. Bush, son of George H.W. Bush, came in power. Bush responded with an Arabian attack. He started killing of terrorists in Afghanistan, Sudan under Operation Enduring Freedom as a part of Global War on Terror. Global War on Terror means attack on terrorists of the world where they are. 9/11 was suspected to be the handwork of Al-Qaeda and Taliban group of Afghanistan. US launched Operation Enduring Freedom against them. US President Bush clearly declared that the overall objective of the global war was not only to destroy Al-Qaeda network worldwide but also to prevent all danger from terrorists with small group seeking to develop nuclear or biological weapon. Taliban regime was overthrown, but increasing terrorist attack on Western countries proved that the Al-Qaeda and Taliban are still aliens and alive. US forces have made arrests throughout the world. Sometimes these arrests have been without the knowledge of government of their home country. Most of the prisoners have been brought to Guantanamo Bay, US naval base in Cuba. Even UN representatives are not allowed to meet the prisoners here. So ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में अमेरिका ने 9/11 का बदला लेने के लिए अलकायदा और तालिबान के जो आतंकवादी ग्रुप थे उन पे हमला करना शुरू किया। ड्रोन हमले हुए, जहाँ जहाँ आतंकवादियों को डिटेक्ट किया गया उन पे हमला हुआ। वर्ल्ड के अंदर जितने भी टेररिस्ट थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए इसको ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का नाम दिया गया। यूएस फोर्सेस ने जितने भी कैदी पकड़े, कई बार तो उन कैदियों को बिना किसी सरकार के पता चले पकड़ा जाता था और उन कैदियों को ग्वाटेमाला में रखा जाता था जो कि क्यूबा के अंदर नेवल बेस था यूएस का, और वहाँ पे उन कैदियों से मिलने के लिए कोई नहीं आ सकता था। इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको भी परमिशन नहीं थी वहाँ कैदियों से मिलने की। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक तरह से अमेरिकन डोमिनेंस था। इसमें अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा हमला किया, हालांकि इराक के ऊपर हमला करने का कोई भी ऐसा सबूत उसके पास नहीं था। इराक जो कि अपने तेल उत्पादन में काफ़ी आगे जा रहा था, तो अमेरिका अपने हेगेमनी को प्रूव करने के लिए, अपने आप को डोमिनेंट दिखाने के लिए इराक पे हमला करता है। इन 2003 US launched a war against Iraq to prevent it from developing weapon of mass destruction. US ने 2003 में इराक पे हमला किया और हमला करने का जो बहाना था वो बनाया था
डेवलपिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अमेरिका ने कहा कि जो इराक है वो बहुत ही घातक हथियार बना रहा है जो कि मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है, जिनको हम परमाणु हथियार कह सकते हैं या हाइड्रोजन बम कह सकते हैं। सो अमेरिका ने 40 अदर स्टेट्स की मदद से इराक पे हमला किया। 1 लाख सैनिक उसमें अमेरिका के थे। इट वॉज टोटली वायोलेशन ऑफ यूएन चार्टर। इस हमले में हर कानून का या कानून के नुमाइंदे का या कानून के जो भी रेगुलेशंस थे, रूल्स रेगुलेशंस थे यूएन चार्टर के, उसका उल्लंघन किया गया। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट सेंट टू इराक फॉर द सर्च ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन। यूएन की ओर से वैज्ञानिकों की एक टीम इराक भेजी गई थी ताकि जो वेपन्स वो बना रहे थे उनके बारे में वो सर्च कर सके। तो उस टीम ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली ये कहा था, देयर वाज नॉट अ सिंगल प्रूफ ऑफ सच वेपन, कि उनको वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला, जिससे ये सिद्ध होता था कि ये हमला अमेरिका के द्वारा सोचा समझा था ताकि अमेरिका इराक के तेल उत्पादक के क्षेत्रों को कब्जे में कर सके। It was a planned attack by US. Iraq was developing more than US in its oil export. To prove the hegemony and prevent Iraq's development, America attacked on it illegally. Later it took huge amounts as compensation of war. America took control over Iraqi oil fields. अमेरिका ने इराक से युद्ध के हर जाने के रूप में काफ़ी पैसा लिया और दोबारा से इराक को सेटल्ड करने में, क्योंकि उसमें काफ़ी सिविलियन भी मारे गए थे जो ड्रोन हमला था, तो दोबारा से सेटल करने में अमेरिका ने जो पैसे के बदले में इराक के ऑयल फील्ड्स पे कब्जा कर लिया था। सो ये अटैक पूर्ण तरीके से अमेरिका के वर्चस्व को सिद्ध करता था, अमेरिका के शक्तिशाली होने का दावा प्रूव करता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।